So, hello friends. My name is Siddharth. Uh, First of all, how are you all? Hope all of you are wonderful. Uh, Please do take care of you well. गर्मी बहुत पड़ रही है. पानी वानी पीते रहो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? So I left with the question. Do I mean to say I'm going to start from the question number third. Okay. हम जो है I mean to say I was solving the question of polity 2024 prelims question. Okay. So क्वेश्चन नंबर थर्ड. टाइम वेस्ट नहीं करते, ख्याल रखो अच्छे से और कोशिश करते कोप अप करो. आप भी कोरिलेट करो चीज़ों को, है ना. मेरा ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन को सॉल्व करना. यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान है. एग्जाम हॉल में बिल्कुल रिवर्स होता है ना. यहाँ पे क्योंकि देख लिया आराम से कूल माइंड से, तो यहाँ तो सॉल्व हो जाते हैं. रेस्ट आगे हमें टेक्निक्स जाननी है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे इंटरलिंकिंग करनी है. यही ऑब्जेक्टिव है क्लासेस का. ठीक है, चलो करते हैं. एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्वेश्चन एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द, शॉर्ट में लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. द पार्लियामेंट में may amend any provision of the constitution. Amend any provision of the constitution by way of addition, variation, repeal, variation, repeal. हमारे पास ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3, है ना. चलो क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं. एज पर आर्टिकल 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of addition, yes, variation, yes, repeal, yes. Okay. So answer would be 1, 2 and 3. Now थोड़ी इन्फॉर्मेशन और जान लेते हैं. आई मीन फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट दी आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 368 mentioned under 20th part 20th of the Constitution of India. Okay, part 20th of the Constitution of India. Now the question is, Parliament can amend the I mean to say basic structure of the Constitution of India. Answer. First of all, what is basic structure of the Constitution of India? First of all, we should know Parliament. What is the composition of Parliament? Composition of Parliament. Parliament comprises of President of India,
लोकसभा, राज्यसभा. लोकसभा means House of People, Rajya Sabha means Council of States. President of India is considered to be the integral part of the Parliament. Okay, now कंपोजिशन समझ में आया पार्लियामेंट का. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा, और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, इधर राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं. ठीक है. नाउ कैन पार्लियामेंट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? First of all, the doctrine of the basic structure was came into force in 1973 केशवानंद भारती केस. बहुत इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती केस. The term basic structure is nowhere mentioned under the Constitution of India. The basic structure of the Constitution is decided by the Supreme Court, Honorable Supreme Court, or the court on case-to-case basis. Okay. So now एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? रूल ऑफ लॉ. Everyone is equal in the eye of law, whether you are a minister or the chief minister or the normal citizen, whether you are a beggar, whether you are a donor, कोई भी हो, everyone is. अगर beggar ने क्राइम किया वो भी जेल जाएगा, अगर डोनर ने क्राइम किया वो भी जेल जाएगा. सो दैट इज व्हाट रूल ऑफ लॉ. Secularism is also the basic structure, example of the basic structure of the constitution decided by whom? Honorable Supreme Court of India. Judicial review. In case of the violation of the fundamental rights, a person can directly approach to the Supreme Court under Article 32 of the Constitution for the restoration of the fundamental rights. उधर क्लेम कर सकता है. और अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट में आप अपने फंडामेंटल राइट्स या लीगल राइट्स को क्लेम कर सकते हो. अगर जॉरिडिक्शन को देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट में एंटरटेन किए जाते हैं, और भी राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो हाई कोर्ट में होते हैं. हाई कोर्ट का वाइडर जॉरिडिक्शन है ना, तो हमेशा याद रखना है ये. तो आई मीन टू से दिस इज समथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. होप समझ में आया होगा. फैक्ट्स देखते चलो अपने हिसाब से, जो भी अच्छा लगता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नोट करते चलो इनको, है ना. चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब. ये क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना. क्वेश्चन नंबर 4. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन करते चलो, जो भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट लगे आपको समझ में आ रहे हो, और अपने तरफ से भी ऐड ऑन करो, क्योंकि आपका एग्जाम का सिलेबस क्या है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो. फैक्ट्स फिगर नोट डाउन करते चलो, ठीक है. इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है इसमें, जो भी है किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है. सो क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following statements in relation of a money will? Question number 4. Which of the following statements in case of money will? Money will is something which is very important under the parliamentary system in case of India. क्वेश्चन पूछ रहे हैं which of the following statements in relation of money will in parliament are correct? Is are correct. Question number 4 correct. Okay, so Article 109, option number 1, Article 109
मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल. मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल. शॉर्ट में लिखते हैं इसको, है ना. सेकेंड ऑप्शन इज अ मनी बिल shall not be introduced in the Council of States. Will shall not be introduced in the Council of States. Council of States means Rajya Sabha. Option number 3, Rajya Sabha can neither approve the bill or Rajya Sabha can either approve the bill or suggest changes. But it can't reject it. But it can't reject it. Option number 4, amendment to the money bill suggested by Rajya Sabha. Amendment to the money bill suggested by Rajya Sabha have to be accepted by Lok Sabha. To be accepted by Lok Sabha. सो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा क्वेश्चन मनी बिल से पूछा जाता है. बिल्स कई तरह के होते हैं. मनी बिल हो गया, ऑर्डिनरी बिल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया, फाइनेंस बिल हो गया. बहुत तरह के बिल होते हैं. कभी टाइम मिलेगा तो जो हम कोई टॉपिक कर रहे होंगे तब अकॉर्डिंगली किसी और ईयर के क्वेश्चन हम इनको पढ़ेंगे. फिलहाल हम कंसर्न है मनी बिल के, है ना. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन केस ऑफ मनी बिल आर करेक्ट. ओके, सो आर्टिकल 109 mention special procedure in respect of money bill. Absolutely correct. The procedure of the money bill is mentioned under Article 109 of the Constitution. That is correct statement. And the definition of money bill is given under Article 110 of the Constitution. Which article? 110. अगेन मनी बिल के केस में क्या होता है, मनी बिल जो है स्पीकर सर्टिफाइड करता है वेदर इट इज अ मनी बिल और द फाइनेंस बिल. इट कांट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट. ओके, रिमेंबर दिस फैक्ट. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट इज अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. यस, money bill can only be introduced in the, I mean to say money bill can be introduced in Lok Sabha only, that is House of People. So it can introduce in Lok Sabha or House of People. It can be introduced. And third statement is Rajya Sabha can either approve the bill or suggest changes, but it can't reject it. Again, always remember, in case of money bill, the role of the Rajya Sabha is advisory to the Rajya Sabha. Okay, so reject नहीं कर सकता है लेकिन सजेस्ट कर सकता है चेंजेस करने के लिए.
बट मैंडेटरी नहीं है कि लोकसभा उसको एक्सेप्ट करे या ना करे. ओके, so this statement is also correct. Now try to correlate the statements. Amendment to the money bill suggested by Rajya Sabha have to be accepted by Lok Sabha. No, contradictory है ना statement अब आपस में दोनों. Try to understand it. Amendment to the money bill suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by Lok Sabha. Again, I have told you that the role of the Rajya Sabha in case of money bill is advisory to the Rajya Sabha. Then इधर तो कह रहे हैं कि मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी accepted by लोकसभा. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो आउट ऑफ आंसर वुड बी कौन सा हो जाएगा हमारा 1, 2 and 3. ये आंसर हो गया आपका. चलो आगे और भी पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पढ़ेंगे, फाइनेंस बिल पढ़ेंगे, अप्रोप्रिएशन बिल पढ़ेंगे, बहुत तरह के बिल्स होते हैं. एक बार कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट आता है, आई मीन बेयर एक्ट बीएम बख्शी वाला कंसाइज वाला ले लो, उसमें अंडर आर्टिकल 110 में डेफिनेशन पढ़ो, 109 पढ़ो, और भी प्रोविजंस है उसको पढ़ने की कोशिश करो, और उसके नीचे नोट्स जो दे रखे हैं उनको पढ़ो, तो क्लैरिटी आएगी, है ना. चलो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 जो है बात करता है द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल. द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल Act was established by the, I mean to say the Northeastern Council was established by the Northeastern Council Act. Eastern Council Act. In 2002, the council comprises 2002 है ना. The council comprises which of the following members? The council comprises which of the following members? ऑप्शन है हमारे पास. क्वेश्चन एक बार पढ़े. द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट इन 2002. द काउंसिल कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, है ना. दिस इज द क्वेश्चन. ऑप्शन है हमारे पास गवर्नर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट स्टेट, गवर्नर ऑफ द constituent state, chief minister of the constituent state, of the constituent state, constituent state. Third option would be 3 members to be nominated by the President of India. 3 members to be nominated by the government of India. Option number 4,
होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ ले। द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट इन 2002। क्वेश्चन कह रहा है द काउंसिल कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। काउंसिल किसको कंप्राइज करता है मेंबर्स में, है ना। नाउ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट स्टेट, यस, गवर्नर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट स्टेट, यस, चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट स्टेट। 3 members to be nominated by the government of India, not government of India, president of India, sorry, president of India, and the home minister. This is something correct, but this one is incorrect. Okay, why? Home minister is the ex officio chairman of the Northeastern Council. Now the question is, what is ex officio? Ex officio implies by the virtue of their post. होम मिनिस्टर है इसीलिए ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के, ठीक है। सो आउट ऑफ ऑल आंसर वुड बी 1, 2 and 3। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जान लेते हैं काउंसिल के बारे में, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। कैसी बॉडी है, याद रखना है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी constituted under the North Eastern Council Act came into being in 1972। कहाँ पे आया था ये, शिलोंग में, मेघालय की कैपिटल है। मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंटल, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। डोनर करके कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। एक और होता है जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। ये कभी भी पूछे जा सकते हैं, ये काउंसिल्स वगैरह हैं, ये बहुत प्रोमिनेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमेशा याद रखो। बेटर होगा इनकी एक बॉल पे पेस्ट करके, एक पेपर पेस्ट करके लगाओ, सुबह उठ के देखा करो, बार बार देखोगे, लिखोगे, देखोगे, याद हो जाएगा, है ना। तो जोनल काउंसिल क्या होता है, जोनल काउंसिल आर एडवाइजरी काउंसिल एंड आर मेड ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। एडवाइजरी काउंसिल्स हैं एंड मेड बाय स्टेट्स ऑफ इंडिया। that have grouped into 5 zones to foster the cooperation among them। उनको कॉपरेशन को फॉस्टर करना है, बूस्टअप करना है, इसलिए 5 जोनल काउंसिल्स हैं। कौन कौन सी है, एक तो नदर्न जोनल काउंसिल इधर हो गया, वेस्टर्न जोनल काउंसिल हो गई, सेंट्रल जोनल काउंसिल हो गई। मैप में करना है इस तरह से ना, सेंट्रल जोनल काउंसिल। आप लोग स्टेट्स को भी आइडेंटिफाई करना जब आप अपना होमवर्क कर रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, तो मैप देखो, मैप में गूगल करके इनके फैक्शन फिगर नोट डाउन करो, है ना। इन सबको लिखवाने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको इनेबल करना, है ना। सेंट्रल काउंसिल, सदर्न जोनल काउंसिल एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, और इधर ये ईस्टर्न काउंसिल हो जाएगी। मैप में करना है सारा का सारा, है ना। तो ये सब हो गए इनके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 6।
Question number 6. Question number 6. How many? Question number 6. How many delimitation commission have been constituted? How many delimitation commission have been constituted? Have been constituted by the Government of India till December 2023. By the Government of India till December 2023. So, option number 1, 1B, 2, C, 3, D, 4. ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो कर लोगे। एक्चुअली क्या, ये हमेशा न्यूज में रहता है। अभी इलेक्शन हुए, इतनी बार बातें हुई हैं, जम्मू एंड कश्मीर का हुआ था और ये लद्दाख का हुआ था, बार बार न्यूज में आता, तो एग्जामिनर ने वहाँ से उठा के क्वेश्चन पूछ लिया है। और हमेशा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछते रहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते डिलिमिटेशन है क्या। व्हाट इज डिलिमिटेशन? प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग ऑफ द सीट्स and boundaries of the territorial constituencies in each state for the Lok Sabha and legislative assemblies. Lok Sabha और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनकी बाउंड्रीज की सीट का फिक्सेशन डिलिमिटेशन होता है, इतना याद रखना है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। तो अब तक 4 डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन डिलिमिटेशन कमीशन कंस्टिट्यूट किए जा चुके हैं। ओके, एक तो 1952 में, ईयर याद कर लो, फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन किस ईयर में पूछा गया, ये पूछ लेगा एग्जामिनर आपको, तो 1952 में। सेकंड कब पूछा गया? 1963 में। थर्ड कब पूछा, थर्ड कब कंस्टिट्यूट किया गया? 1973 में। फोर्थ 2002 में। तो क्वेश्चन पूछ लेगा रिसेंट वन कौन सा है, तो रिसेंट वन यू नीड टू मगअप, यू नीड टू रिकॉल 2022। ओके, so this is the answer for this question. Answer would be D. Okay, now the question number 7. कोप अप करो, फैक्ट्स एंड फिगर नोट डाउन करते चलो, आगे आगे और क्लैरिटी आएगी। मैं और ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऐड करूँगा, आप लोग जो है टच में रहो, है ना। कोशिश चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँ थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं पॉलिटी के। चलो, क्वेश्चन नंबर 7। द कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 amends the 8th schedule, amends the 8th schedule. 8th schedule is about the languages. Okay, so 8th schedule
टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का 71st अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 का 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेजेस ऐड कराई थी, है ना। सो ऑप्शन नंबर 1 कोंकणी, ऑप्शन नंबर 2 मणिपुरी, ऑप्शन नंबर 3 नेपाली, ऑप्शन नंबर 4 मैथिली। प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन, वेदर यू नो और डोंट नो, ऐसे वाला क्वेश्चन। ऐसे लैंग्वेजेस जो है 8th शेड्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो हमें याद रखने, है ना। इसकी भी एक लिस्ट बना लो आप, ताकि कभी भी पूछा जाए, और पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। लैंग्वेज इन इटसेल्फ इम्पोर्टेंट, तो क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है। चलो करते इसको। कोंकणी यस, मणिपुरी यस, नेपाली यस। तो 71st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोंकणी जोड़ी गई थी, मणिपुरी जोड़ी गई थी, नेपाली जोड़ी गई थी। आई मीन टू से कोंकणी वॉज एडेड, मणिपुरी वॉज एडेड, नेपाली वॉज एडेड। मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, these languages were added through 92nd constitution amendment. Getting? Now the question, how many languages are there in 8th schedule? बताओ। There are 22 languages in 8th schedule. At the time of the commencement of the Constitution of India, there were 14, I mean to say, yeah, 14 languages. At the commencement of the Constitution of India, there were 14 languages. As of now, 30। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गए, ये भी आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो, हेल्प करेगा, है ना। आपकी मर्जी है, आप भी अपना दिमाग लगाओ, कैसे क्या करना है, कैसे नोट्स बनाने, क्या इंपॉर्टेंट है आपको, क्या नहीं आता है। जो नहीं आता है वो नोट डाउन करो, जो आता है वेल एंड गुड, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज अबाउट पार्टीज का इस्टेब्लिशमेंट किया था कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज के द्वारा, उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स पूछे गए। या तो आपको फैक्ट्स आते हैं या तो नहीं आते हैं, है ना। अगर आता होगा तो कर पाओगे, नहीं आता होगा तो नहीं कर पाओगे। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, आगे के लिए याद रखो, क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, कहीं पे भी इसको पूछ सकते हैं कॉपी पेस्ट करके, ये होता रहता है किसी एग्जाम का कहीं कहीं, और पूछे जाते हैं इंटरलिंक करके, तो बेनिफिशियल है, आगे के लिए याद रखो, है ना। भारतीय जनसंघ, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय जनसंघ, जनसंघ established बाय डॉक्टर श्यामा प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 2, आई मीन ऑप्शन नंबर 2 सोशलिस्ट पार्टी, established by सी राजागोपालाचारी। थर्ड, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, कांग्रेस फॉर
Democracy. What is democracy? Democracy is by the people, for the people, of the people. Overall, we can say we the people of India. Okay, so that is what democracy is. So Congress for democracy, Jagjeevan Ram. स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन नंबर, स्वतंत्र पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव। नरेंद्र देव ऑप्शन है हमारे पास, पेयर्स वाला है, टफ है, इसमें एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, है ना। वन ओनली, टू ओनली, ओनली टू, थर्ड, ओनली, थ्री, फोर्थ, ओनली फोर। सो बेसिकली भारतीय जनसंघ वॉज द established by, I mean, Dr. Shyama Prasad. This one is correct. Socialist Party was established by Acharya Narendra Dev. Acharya Narendra Dev. So this one is incorrect. Congress for Democracy, yes, established by Babu Jagjeevan Ram. Jagjeevan Ram. Yes. And स्वतंत्र पार्टी, इसका एक बार गूगल करके आप कंफर्म करो किसने किया था, है ना। रेस्ट ये गलत है। सो आंसर वुड बी ओनली टू। स्वतंत्र पार्टी इन इटसेल्फ मीन्स, I mean the स्वतंत्र पार्टी was talking about the free market economy. राइटिस्ट है, राइट विंग वाले हैं, आई मीन जो मोदी सरकार वाले इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। लिबरल है ना। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। एक बार इसको गूगल कर लेना, है ना, किसने किया था। वैसे ये रॉन्ग है, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने करी थी, एक बार आप देख लेना इसको। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 फैक्चुअल क्वेश्चन था, पर्सनैलिटी से हिसाब, पर्सनैलिटीज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चुनाव हुए हैं, आइडियोलॉजीज हैं, बहुत सारी पार्टी हैं, हर पार्टी अपनी एक आइडियोलॉजी फॉलो करती है ना। तो ये आइडियोलॉजी से क्वेश्चन था, आप किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सही चीज को हमेशा अप्रिशिएट करो, अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो डेप्रिशिएट भी मत करो, है ना। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following statements, which of the following statements, which of the following statements are correct about the Constitution of India? Question is, which of the following statements is correct about the Constitution of India? Now, option number 1, power of the municipalities are given in the
Part 9th of the Constitution of India. Power of municipalities are given in the Part 9th of the Constitution of India. Option number 2. Emergency provisions are given in the Part 18th of the Constitution. Emergency. अब पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया. पार्ट्स आर समथिंग विच इज वेरी प्रोमिनेंट टॉपिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आप लोग एक लिस्ट बना लो. पार्ट्स आपको याद होने चाहिए. निमोनिक भी बहुत सारे गूगल पे अवेलेबल हैं. आप लोग निमोनिक अपने अकॉर्डिंग बनाओ या गूगल से देख लो. और बेटर है एक बार लिस्ट देख ही लिया करो, वो ज़्यादा अच्छा है, याद हो जाएगा. इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 9. पार्ट 9. नो. इमरजेंसी पार्ट 9 में म्यूनिसिपैलिटीज के. पार्ट 18 of the Constitution of India. Of the Constitution. Option number 3. Provision related to amendment of the Constitution are given in. कोरिलेट करना है, क्वेश्चन पूछा गया है इससे. प्रोविजन रिलेटेड to the amendment of the Constitution. Amendment of the Constitution are given in Part 20. Are given in Part 20 of the Constitution. Part 20 of the Constitution. Now the options are. 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, D 1, 2 and 3. So the question is, which of the following statements are correct about the Constitution of India? Yes, ये वेल नोन फैक्ट्स हैं और बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत वन ऑफ द मेजर टॉपिक अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत 92nd और 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आए थे, है ना. म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत 73rd पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी. पंचायत का 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था एंड म्यूनिसिपैलिटी का 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना. इतना याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी आर गिवन इन द पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यस. Emergency provisions are given in Part 18th of the Constitution of India. Okay, emergency provisions. Emergency means national emergency, president rule, financial emergency. National emergency under Article 352 of the Constitution, president rule under Article 356 of the Constitution, and financial emergency under Article 360 of the Constitution. ओके, इतना हमें याद रखना है. सो इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 18th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यस. एंड प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
I mean to the constitution are given in part 20. Yes, आर्टिकल 368 हमने पढ़ा था अभी. तो कोरिलेट करनी है चीजें. So out of all answer would be what? Obviously D. So this would be the answer for the question. Now the next question is question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है इसमें, है ना. कॉमन सेंस ओरिएंटेड है और अगेन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इम्पोर्टेंट क्या, फैक्चुअल क्वेश्चन और फैक्ट्स विद कॉमन सेंस. आप जब बार बार पढ़ रहे होते हो, क्वेश्चन लगा रहे होते तो फैक्ट्स समझ में आने लग जाते हैं, कॉमन सेंस अपने आप काम करने लगता है ना. सो द क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट. क्वेश्चन नंबर 10 इज which of the following statement is are correct. Which of the following statement is are correct. The following statement is are correct as per the Constitution of India. As per the Constitution of India. So the option number A, interstate trade and commerce is a subject matter under the state list. वर्ड्स को मार्कअप करना है. इंटर स्टेट का मामला है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच का व्यापार जो है और वाणिज्य. इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स is a subject matter, I mean subject under the state list. Subject matter under subject under state list. अगेन थोड़ा क्लैरिटी के लिए जान लेते, 3 तरह की लिस्ट होती है ना. कौन कौन सी. अंडर 7th शेड्यूल आई थिंक, या अंडर 7th शेड्यूल देयर आर 3 लिस्ट. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट सोलली पार्लियामेंट इस पे लॉ बनाता है. स्टेट पे जनरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाता है. कंकरेंट लिस्ट जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही लॉ बनाते हैं, है ना. इन केस ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट legislative assembly, in case of concurrent list the law made by the parliament shall be prevailed, okay, or shall prevail. एंड अगेन स्टेट लिस्ट पे भी कुछ अर्जेंट इमरजेंसी है, अर्जेंट सब्जेक्ट मैटर है, अर्जेंट इम्पोर्टेंस का सब्जेक्ट मैटर है, तो वो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकते हैं. चलो क्वेश्चन देखते हैं फिर, है ना. सो इंटर स्टेट, ऑप्शन नंबर बी, इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट. इंटर स्टेट माइग्रेशन is a state subject under the state list. State list. C, interstate quarantine is a यूनियन सब्जेक्ट. कॉमन सेंस लगाना है. कोविड में क्वारंटीन हुए थे. इंटर स्टेट इंटर स्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट.
यूनियन लिस्ट. And D, corporation tax is a corporation tax. Getting the corporation tax is a state subject. Corporation is a state subject under the state list. अब हमें आइडेंटिफाई करना है ऑप्शन ए, बी, बी, सी एंड डी. इसमें से हमें एक आंसर बताना है ना. चलो इसको भी सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट. इंटर स्टेट रॉन्ग. एक स्टेट से दूसरे स्टेट का जो व्यापार से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है. कौन सी लिस्ट का है? यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है. इसका जो है इसमें यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 42 है. पढ़ लेना एक बार लिस्ट उठा के. एंट्री नंबर 42 जो है यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर. ये कह रहे हैं स्टेट लिस्ट. अगेन इंटर स्टेट आ गया इसमें. इंटर स्टेट अगेन ये भी यूनियन लिस्ट का ही हो जाएगा. यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है ये. यूनियन लिस्ट का इंटर स्टेट है ना, या फेडरल कह सकते हो या यूनियन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो. अगेन इंटर स्टेट क्वारंटीन इज अ सब्जेक्ट मैटर अंडर द यूनियन लिस्ट. यस, सो दिस वुड बी द राइट आंसर आउट ऑफ 1. Corporation tax is a state subject under the state list. No, union list. यूनियन लिस्ट में ये वाला है ना. तो ऐसे करके है. और इंटर स्टेट का क्वारंटीन का इसका एंट्री नंबर 81 है. एक बार इनकी एंट्रीज देख लो. तो ऐसे करके हमने इनको सॉल्व किया. अब जो क्वेश्चन अभी भी कुछ बचे हुए नेक्स्ट सेशन में जो होंगे नेक्स्ट बाकी के जो भी क्वेश्चन बचे हुए 2024 में प्रीलिम्स में पूछे गए सवाल सारे के सारे सॉल्व करूँगा. और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो, सीखो, जानो, पढ़ो लिखो, है ना. यही है. मैं क्वेश्चन सारे सॉल्व कराऊँगा. इसके बाद 24 के सॉल्व कराने के बाद 23 के 2020 ऐसे करके मैं फेज्ड मैनर में सारे के सारे क्वेश्चन कराऊँगा. सो फ्रेंड्स, thank you so much for watching me. Please do like, share and subscribe. Thank you so much.